Hello, welcome student to Tech News and myself Ajit Kumar. Today we'll see your first chapter. Right, we'll start first of all the first chapter, okay, of Computer Science Class 12 HSC Maharashtra Board. Right, so the first chapter will start over here, and before that we'll see some important topics at least. First of all, the important questions what board is asking in your exams, right, and how the chapter is, right. सो ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे अभी पहले देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पहले ही चैप्टर के बारे में थोड़ा अंदाजा आ जाए, ठीक है। नहीं तो अपन क्या करते हैं कि लीव कर देते, फिर वो चैप्टर करें या ना करें। तो उसके लिए मैं पहले फीचर्स बता देता हूँ चैप्टर के, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, राइट। सो वी स्टार्ट ओवर हियर। सो द चैप्टर इज ऑपरेटिंग system, right, the first chapter 1, right. So in this chapter, first of all, some important concepts are there related to your memory, right, related to your memory management techniques, right, relating to your you can say this operating, what is an operating system first of all, then operating system services, right, then overview of particular operating system, right. So this all stuff are there, right. Then we have security methods, right, allocation methods, how the memory has been allocated, or means many things. Then we have a computer means threats, right, types of attacks, what attacks could be done to a computer operating system, right. So this thing. Then you have types of operating systems as well, that is Windows, Linux, right, this stuff. Then this some important topics are there actually in this chapter, right. So we'll go through this chapter, okay. First of all, we'll see the summary of this chapter, that is the important topics, right. So first question is, important question is, first it is what? The main chapter topic, that is what is an OS, right. Then it's, you can say, services, right, services. In services, process management technique means this service is very much important, right. Process management, okay, process management, this is very important, and it is an easier one as well, and it has some stepwise you can say concept, right. It has three types actually, three services, but then among those it is most important, and the other one are information and memory management, right. But process management, you can say it is more important than these three, than these two remaining two, right. सो एक्चुअली कैसा, तीनों भी इंपॉर्टेंट ही है, बट प्रोसेस में कैसे है ना, आपको समझने में भी आसानी होती है और एक इजी है एक्चुअली वो, ठीक है, और स्टेप वाइज है। मतलब आपको कैसे आना बोलते हैं ना हम लोग, स्टेप्स के हिसाब से। अगर हम लोग को थियरी याद नहीं रहता तो क्या करते हैं हम लोग, वी फॉलो सम राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग पैटर्न, या फिर लेटर्स के हिसाब से हम याद करते हैं कुछ वर्ड्स को, या इंपॉर्टेंट बोल्ड पॉइंट्स को। तो उस हिसाब से इसमें वो चीज है। मतलब इसमें कैसा है, जैसा स्टार्ट करेंगे, फिर रन करेंगे, फिर हैंग आउट करेंगे, मतलब उसको पॉज करके रखेंगे, फिर उसको जैसा हम लोग कैसा प्ले पॉज करते हैं, राइट, कोई भी प्रोसेस, मतलब यू कैन से प्लेयर वगैरह, उस हिसाब से ही, मतलब स्टेप वाइज है प्रोसेस, तो एकदम इजी रहेगा आपको ध्यान में रखने के लिए। तो वो हो गया। देन यू हैव ओवरव्यू ऑफ ओएस, राइट, ओवरव्यू ऑफ ओएस, बट ये इतना नहीं बोलूंगा मैं कंपेयर टू दिस, राइट। ओवरव्यू में कैसा है, बहुत एक थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट, एक साधारण सा समझने वाला चीज है, कैसा है, मतलब ओएस क्या है, कैसा मतलब फास्टर है, स्लोअर है, इजी है, क्या है, मतलब वो सब हम लोग देखते हैं। फिर आपको दो आर्किटेक्चर्स है, मतलब एक मेन तो विंडोज एनटी का है, राइट। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपको टॉपिक्स, राइट, तो इसमें से इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, आप लोग वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ऐसा मैं लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि सभी इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है, पर जो बता रहा हूं वो जरा नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं ऐसा लिस्टिंग करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को पूरा चैप्टर लेने का आपके लिए, ठीक है।
सो सर्विस हो गया, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी इसमें ओवरव्यू ऑफ ओएस में हाँ विंडोज एनटी एक आता है आर्किटेक्चर आपका, फिर एक लिनक्स आ जाएगा इसमें, राइट, इसमें आपको लिनक्स आ जाएगा, ओके, विंडोज एनटी देन लिनक्स, राइट। तो इसके फिर से वही फीचर्स हो गए, ओवरव्यू है, ये सब आपको रहने वाला है उसमें, ठीक है। तो लिनक्स का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना आप लोग लिनक्स को, ठीक है, क्योंकि ये एक इजियर है और कंपेयर टू विंडोज दोनों भी इजी है, बट लिनक्स कैसा है आज के जनरेशन का चीज है, ठीक है, मतलब बहुत यूज हो रहा है आजकल लिनक्स। एप्पल में आपको पता है, एप्पल जो आपका है मतलब लैपटॉप वगैरह होता है, बहुत जन आजकल वो ट्रेंड में यूज कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कैसे तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन से ओवर देयर एंड इट इज इजियर आल्सो, फास्टर आल्सो। सो लिनक्स एक इंपॉर्टेंट, मैं आपको प्रैक्टिकल डेली लाइफ के हिसाब से ही बता रहा हूं मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो एक हो गया। फिर आपका है फाइल सिस्टम्स, राइट। फाइल सिस्टम में क्या है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम में कैसा है आपका, फ्लॉपी डिस्क हो गया, राइट, आपका फिर हार्ड डिस्क हो गया, राइट। तो ये हार्ड डिस्क का जो है, इसमें जो है दो टॉपिक्स है, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, राइट, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ये दो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। ट्रैक्स एंड, देखो ये ट्रैक्स है, रुको मैं लिख देता हूं प्रॉपरली, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया इसमें हार्ड डिस्क वाले पार्ट में, ये दो कैसे भी करना ही अपने को, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद फाइल सिस्टम्स हो गया, फ्लॉपी डिस्क, ये सब हो गया, डिस्क वगैरह हो गया। हाँ, फिर एकदम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फाइल ऑपरेशंस, राइट। फाइल ऑपरेशंस मतलब क्या, वही रीड राइट वो वाले सब, ठीक है ना। कुछ 5 से 6 है, 5 है आपको, ठीक है, मतलब कैसे क्रिएट करते हो फाइल, ये तो एकदम नॉर्मल वाला, इसके लिए मैं ये इंपॉर्टेंस में डाल रहा हूँ, इसके लिए ये मैं इंपॉर्टेंस में डाल रहा हूँ क्योंकि ये इजी है समझने के लिए, ये वाला भी इजी है आपको, स्टेप वाइज जैसा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से, और लिनक्स कैसा डेली आप यूज कर रहे हो तो आपको पता है फास्टर, ये सब पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो उस हिसाब से। फिर बाद में फ्लॉपी डिस्क, ये हार्ड डिस्क का, ये दो समझना पड़ेगा आपने, वो मैं समझाऊंगा आपको जब भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, ट्रैक्स और सेक्टर्स वो सब, ठीक है। फिर बाद में रीड और राइट, कैसा है ना, एकदम इजी है। आपने फाइल को क्रिएट किया, फिर फाइल में कुछ एंट्री करी, ठीक है, मतलब राइट करी, फिर बाद में राइट करने के बाद सेव किया था तो उसको रीड करोगे, मतलब रीड हो गया, फिर बाद में काम खत्म हो गया, अगर नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, फिर रिवाइंड करो, ये सब मतलब एकदम बेसिक्स है। तो ये 5 इसमें ऑपरेशंस है, ठीक है, 5 ऑपरेशंस है, तो वो एकदम ही अच्छे से आपको करना है, बस एक एक वर्ड का ही एक टॉपिक, अगर ये टॉपिक कर लोगे तो आपका इधर 2 मार्क्स स्कोर हो सकता है आपको, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। फिर एलोकेशन मेथड्स है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ा टफ जाता है बच्चों को, ठीक है, मतलब इंडेक्सिंग टाइप का होता है इसमें, मतलब पर्टिकुलर कैसा फाइल्स का एलोकेशन होता है, ठीक है। तो ये है एलोकेशन, राइट, मेथड्स, राइट, जो कि कॉन्टिग्यूअस होता है, ओके, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिग्यूअस होता है एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस, ठीक है, नॉन कॉन्टिग्यूअस, ओके, कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस, यू आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, स्पेलिंग का थोड़ा सा ही हो गया, चलता है, ठीक है। सो कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस, तो इसमें थोड़े एल्गोरिथम्स है, ठीक है। फिर इंडेक्स्ड एलोकेशन एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये जो इसका ही पार्ट है, राइट, इसका ही पार्ट है। तो इसमें इंडेक्स्ड एलोकेशन करके एक टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ सकता है कि एक्सप्लेन इंडेक्स्ड एलोकेशन, स्पेशली इंडेक्स्ड एलोकेशन, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद सबका फिर आपको आ जाएगा इंपॉर्टेंट मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट, फिर आपको आ जाएगा इंपॉर्टेंट मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मैं रफ कर देता हूं फिलहाल, नोट डाउन कर लिया होगा आपने तो, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन मल्टी प्रोग्रामिंग करके आ सकता है, ठीक है।
तो मल्टी मतलब क्या, एकदम इजी है, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करते हो आप, बस उसको थोड़ा डीप में समझने की जरूरत है। ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का देख लेंगे, ठीक है। मतलब उसमें कैसा है ना, प्रोसेस स्टेट्स देखना पड़ता है, रनिंग, रेडी, ये सब जैसा अपन ने देखा उसका फाइल क्रिएशन जो स्टेप्स होता है वो वाला, ठीक है। फिर बाद में हाँ, इसमें शेड्यूलिंग भी इंपॉर्टेंट है फिर बाद में, ठीक है। ये वो कितने 5 क्वेश्चन थे, ये फिर 6वां है और ये 7वां क्या है आपका, शेड्यूलिंग, ठीक है ना। शेड्यूलिंग में कुछ 5 स्टेप्स है, राइट, 6 है, ठीक है ना। 6 इसके है, 5 + 1 दैट इज 6 आर देयर, राइट। टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, ये सब आपको है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर बाद में शेड्यूलिंग का इंपॉर्टेंट हो गया, तो शेड्यूलिंग में देखो कैसे है, प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी में खास करके एसजेएफ एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक्सटर्नल इंटरनल प्रायोरिटीज वगैरह नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, कम से कम प्रायोरिटी का, राइट, प्रायोरिटी का आप क्या करना है, आपको एसजेएफ एल्गोरिथम देखना है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, राइट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर प्रीएम्प्टिव पॉलिसी नॉर्म, ठीक है। फिर हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फिर आ गया आपको मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग देखा हमने, ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग देखा। फिर आपका मल्टीटास्किंग है, ठीक है, मल्टीटास्किंग। देन टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग से मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ही थोड़ा आपको डिफरेंस में बताऊंगा उसका, ठीक है। मल्टीटास्किंग उसके बारे में बताना है, सिर्फ टास्क जो होते हैं बहुत सारे, जैसा अभी आप लैपटॉप पे हो तो उसमें क्या कर रहे हो आप, एक्सेल फाइल बना रहे हो, फिर बाद में आपका HTML का या CSS का कोई प्रोग्राम भी बना रहे हो, ठीक है। तो टास्क के बीच में स्विच करते हो आप लोग, तो उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सब है, तो यूजर्स के हिसाब से मल्टीपल यूजर्स रहेंगे उसमें, तो होता है, ठीक है, वो बता दूंगा मैं। फिर मेमोरी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट उसमें नॉन कॉन्टिग्यूअस ये सब है, उसमें देखो पेजिंग और सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉन्टिग्यूअस में जो है पेजिंग और सेगमेंटेशन, ये सब टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स है। इसके लिए मैं इसको बीच से उठा के आपको बता रहा हूं, अगर पूरा नहीं कर पाए तो ये तो करना है कम से कम। इसके लिए मैं पूरा नहीं, तो आपको लगेगा सर ये क्या पूरा ही तो दे रहे हो आप, क्या फायदा, नहीं, क्या पूरा नहीं दे रहा हूं मैं, सब टॉपिक्स दे रहा हूं बीच बीच में। सेगमेंटेशन, राइट, ये दो कैसे भी करना है आपने को, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी करके एक टॉपिक है, देखो वर्चुअल मेमोरी में जो पेज फॉल्ट होता है ना, और पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्चुअल में, राइट, वर्चुअल मेमोरी में यू हैव दिस टू, पेज फॉल्ट, कभी 1 मार्क के लिए पूछ लिया तो, ठीक है, पेज फॉल्ट क्या होता है, और ये भी पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। एंड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, राइट, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। बोर्ड थोड़ा हिल रहा है ना, इसके लिए वो हैंड राइटिंग करा अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। डर्टी पेज भी देख। फिर बेसिक्स ऑफ GUI, ये एकदम बेसिक है, आपको तो पता है, आप PC यूज करते हो, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या बताने का है, ठीक है। ये हो गया 11 क्वेश्चंस ना। अभी मैं यहाँ पे यस बता दे रहा हूं आप लोग को। हाँ, बेसिक्स ऑफ GUI, 12th क्वेश्चन हुआ, बेसिक्स ऑफ GUI। इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना विंडो है, ठीक है ना। विंडो में क्या क्या बटन्स है, क्या कंट्रोल्स है, क्या रहता है ये, फिर ये स्क्रीन क्या रहता है, ठीक है ना, ये सब मतलब यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडो, व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स ऑफ विंडो, ये एक इंपॉर्टेंट एक्चुअली इसमें है, सिर्फ ये समझ के रखना है आपको, ठीक है। जैसा मैंने बताया टाइटल बार है, ये मैक्सिमाइज और ये है मतलब क्या बोलते हैं क्लोज बटन्स है, ठीक है। फिर बाद में इधर मिनिमाइज मैक्सिमाइज का रहता है, फिर बाद में आपको स्क्रोल बार्स रहते हैं अगर एक्सटेंड हुए तो, रिसाइजिंग विंडो, ठीक है ना। तो ये सब एक नॉर्मल सा है, 4-5 पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ जाएगा, इजी रहेगा। हाँ, फिर एकदम से एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी है, ये 2 टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। थ्रेड्स, एक्सेस सिक्योरिटी थ्रेड्स में, थ्रेड्स जो होता है, थ्रेड्स में खास करके थ्रेड्स पढ़ना है तो पढ़ो, अनऑथराइज्ड एक्सेस के रिलेटेड ही होता है। कुछ भी अगर कोई भी बंदा, अगर अनजान बंदे ने अगर एक्सेस किया मतलब
वो थ्रेट में ही आ गया, भले वो उसका इंटेंशन क्या हो, अच्छा इंटेंशन है कि बुरा इंटेंशन है, तो थ्रेट में ही आ जाता हो, ठीक है। सो अच्छा किसने पहचाना, अच्छा रहेगा तो अच्छा ही, वो थ्रेट में नहीं आएगा फिर, बट नॉर्मली अनजान है, अनऑथराइज है यूजर, तो समझ जाओ थ्रेट्स में आ गया हो, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना 13 वाला, ये कैसे भी आपको एग्जाम में करके ही जाना है, अटैक्स सिक्योरिटी अटैक्स यू कैन से, या अटैक्स ऑन सिक्योरिटी, राइट, अटैक्स ऑन सिक्योरिटी, ओके, अटैक्स ऑन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रैप डोर्स क्या होता है इसमें, लाइन टैपिंग, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट है, खास करके ट्रैप डोर्स और ऑथराइजेशन, ये दो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। फिर आगे आपका लास्ट में फिर कंप्यूटर वर्म और कंप्यूटर वायरस, एकदम इंपॉर्टेंट है, गारंटीड क्वेश्चन है 14, राइट। कंप्यूटर एक वर्म क्या होता है, कंप्यूटर एक वायरस क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वायरस और वर्म्स के कंपैरिजन ज्यादा करके हमें पूछ लेगा 2 मार्क के लिए, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कंप्यूटर वायरस में आपका क्या होता है, वायरसेस के टाइप्स पूछेगा, ठीक है ना, कौन से वायरसेस है, ट्रोजन हॉर्स वाले हैं क्या, बूट सेक्टर वायरस है कि फाइल मल्टीप्लाई वायरसेस है, फाइल वायरस है कि नॉर्मल यू कैन से वायरस है कि कमांड प्रॉम्प्ट वाले वायरस है, मतलब प्रोसेसर वाले वैसे वाले। फिर उसमें इन्फेक्शन मेथड्स हो गया, मोड्स ऑफ ऑपरेशन हो गया, प्रिवेंशन कैसे करना है, रिमूवल कैसे करना है, डिटेक्ट कैसे करना है, वो सब है उसमें कंप्यूटर वायरस में। पर मेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस फुल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है उसमें से, क्या मोड्स है, क्या इन्फेक्शन टेक्निक्स है, क्या प्रिवेंशन मेथड्स है, ठीक है, क्या डिटेक्शन मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, तो ये सब। तो ये देखो 14 क्वेश्चंस के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर रैप अप हो गया, और ये कुछ आपको 22 से 23 मार्क्स दिला सकता है विद ऑप्शन, राइट, विद ऑप्शन, आई एम सेइंग विद ऑप्शन। तो सोचो 20, 22 या 25 मार्क के लिए, 20 से 25 मार्क के रेंज के लिए क्या इतना नहीं पढ़ सकते हम लोग, पढ़ना ही पड़ेगा, और थियरिटिकल है और एकदम बेसिक है, एकदम अच्छे से बता दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आप लोग का, मैं जो भी था समरी बताया मैंने आपको। अभी ओएस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो जरा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस बिलो वीडियो, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। ये देखो एक क्या है, एक पर्टिकुलर यू कैन से एक मॉड्यूल है, राइट। सो इसमें क्या होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंप्यूटर क्या रहता है, हार्डवेयर रहेगा और सॉफ्टवेयर रहेगा, राइट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट विल बी देयर। तो कैसा होता है कि और सॉफ्टवेयर रहेगा और जो एप्लीकेशन चलते हैं आपके इधर, राइट, वो रहेगा, ठीक है। हार्ड सॉफ्टवेयर में अगर सपोज समझ लो आपका कौन सा ओएस में कौन से हार्डवेयर में है, राइट, मतलब एक पर्टिकुलर हार्डवेयर है, सपोज एक पर्टिकुलर पीसी है, उसमें कौन सा ओएस आपने इंस्टॉल किया है, विंडोज, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट, उसको क्या चाहिए चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, वो ओएस होता है, राइट, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अंदर जब ये दोनों का मिलाप हो जाता है ना, तो उसके अंदर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप रन करते हो। देखा है तो सॉफ्टवेयर ये है, ये नहीं, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जो इंस्टॉल्ड कंपोनेंट आपका जब इंस्टॉल करते हो या पर्टिकुलर हार्डवेयर में, तब आपका कंप्यूटर बूट होता है, बूट होने के बाद आपका जो भी सॉफ्टवेयर है अंदर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो लगता है वो ओएस के मदद से मिलता है। सब डीएलएल फाइल्स दुनिया भर के आप इसमें ठुसे हुए रहते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात है, अगर सिस्टम 32.dll का अगर आपने डिलीट कर दिया अंदर से, तो ये चलना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यू कैन से पुराना अपडेट आई वुड से ओवर हियर मेंशन इट, मतलब कोई भी सपोज एक डीएलएल, चलो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, बट कोई भी एक डीएलएल फाइल भी आप उड़ा दोगे ना, खास करके ऐसे बड़े डीएलएल जो है जो मेन होते हैं, तो पूरा ही बंद पड़ जाएगा। और अगर कुछ और डिलीट किया तो शायद कुछ कॉपी पेस्ट में दिक्कत, या फिर कोई प्रोग्राम लोड होने में, या फिर जो आपको एक्सप्लोरर बार दिखता है वो दिखने में, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यही मेरा बोलने का ये था, बेसिक एक बता दिया आपको, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक सपोज एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है, इसको सिस्टम पकड़ लेते हैं हम लोग, राइट, इसको अपने सिस्टम पकड़ लेते हैं। तो सिस्टम में क्या क्या है, एक हार्डवेयर है
राइट, हार्डवेयर के अंदर ओएस है, तो ये दोनों का जब भी सपोर्ट होता है तभी ये कंप्यूटर चलता है, ये सिस्टम चलता है, और ये चलने के बाद ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप रन कर सकते हो, राइट। इसको रन करने के बाद आपका क्या है, आप फीचर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, फीचर्स, राइट, फीचर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, कैसा चल रहा है, फास्ट है, फास्टर है कि स्लोअर है, ठीक है। You can say this all stuff you will study on as I explained earlier overview of OS, right। फिर इसमें जो काम होता है, जो सर्विसेज होता है, राइट, सर्विसेज जो होता है, ओके, सर्विसेज, तो सर्विसेज क्या है, जैसा मैंने बताया, पहला सर्विस है इंफॉर्मेशन लेवल पे क्या सर्विस देता है वो, दैट इज इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज करता है, मैनेजमेंट। देन पर्टिकुलर प्रोसेस, प्रोसेस मतलब जो भी, अभी सपोज एक कॉपी पेस्ट का काम हो गया, तो वो क्या है, एक प्रोसेस हो गया जो कि एक पर्टिकुलर मेमोरी को असाइंड है, ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, मैनेजमेंट, ठीक है, ये दूसरा सर्विस हो गया। तीसरा सर्विस क्या है आपका, योर थर्ड सर्विस इज दिस थिंग, इट इज मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। द थर्ड सर्विस इज मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा सर्विस क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। सो दिस ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसके हिसाब से, अपना जो आपका सिस्टम के हिसाब से, राइट। मैंने तभी जो बताया था एग्जाम के हिसाब से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हैव सम इजी स्टेप्स, राइट, टू रिमेंबर, ठीक है, उस हिसाब से मैंने बोला था आपको। पर तीनों इंपॉर्टेंट है एज पर सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज दे गो हैंड इन हैंड, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये सर्विसेज और ये जो है आपका ओवरव्यू, ये मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ डीप में। अभी फिलहाल मुझे ये बताना था कि कैसे रिलेटेड है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक बताना था आपको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है देखा हमने, फिर बाद में उसमें क्या सर्विसेज है, फिर वो उसको उसमें क्या क्या चीजें हैं या क्या फीचर्स हैं, वो सब हमने यहाँ पे देखा अभी, ठीक है, मतलब एक बेसिक देखा। इसके अगले लेक्चर में विल डेफिनेटली कंटिन्यू विथ सम अदर डे विथ अदर part of this first chapter video, right? So till then, if you have any comments and doubts, you definitely comment me in the comment section of this video, and till then we'll wind up over here, and I will request you all to subscribe the channel Tech Niyojan for class 12, 11 IT, CS and electronics subjects, right? So we'll come once again to continue after this, right? So till then, thank you students. Have a good day. See ya. Stay safe and study hard. All the best for your exams. Thank you.